You? Yeah. Good evening, Dr. Karishma Wadia, and good evening, everyone else. So, as we all know, today's webinar is all about eye care for all. Okay, so on behalf of Sopan Shanai, I welcome Dr. Karishma Wadia. And before we all get started, I'll just give a brief introduction about Dr. Karishma Wadia, who is daughter of Dr. Dinak Wadia and also a well-known ophthalmologist and eye surgeon in Mumbai. She is the director at Jehan Eye Clinic. She has completed her MBBS, GND, and FNN. She specializes in cataract, cornea, and LASIK surgery. She is also a member of All India Ophthalmology Society, Bombay Ophthalmologist Association, Maharashtra Medical Council, and Maharashtra Ophthalmology Society. Being a well-known cornea specialist, she has conducted multiple courses and hands-on skill transfer sessions at national and international conferences. So we welcome you, ma'am. Thank you so much. So at the outset, let me apologize for my laptop not yet connecting. I'm still in the process of connecting. But let me start by asking you all, since like I said, we are a small number of people, that what is your bigger concern? Do you want me to speak on adult eye care, or do you want me to speak on eye care in children? Children preferably, and thoda English, Yes. yeah. So, Jabi, you need my help, as in you need me to stop or you need me to translate into Hindi. Just, somebody can just give me a disclaimer as has been done right now. Okay. Thank you. I'm still, like I said, waiting for my Zoom. There's some issue in my Zoom. So, till then, at least let me start a basic thing with y'all. Okay. So, I have an eye model to show you. So let's start with this. All right. Can everybody see me? Priyanka, can we put spotlight on Dr. Karishma? Okay. So basically, this is the eyeball. All right. And as you can see, this is the inside of the eyeball. So before I start about eye care for anybody, बच्चों के लिए, adults के लिए, जो भी हो eye care, आपको पहले eyes के parts समझना जरूरी है, because if you don't understand that, you won't understand कि problem कहाँ है, and if you don't know where the problem is, you will keep wondering कि मुझे क्या करना है. Okay, so जो बाहर से आपको, when you look at someone's eyes and you see one portion which is black and one portion which is white, okay, so the black is not actually black. For example, right now when you look at the eye, it is not brown. This कांच that is there on the top is a transparent layer. ठीक है? Can you see this? This is called the cornea. It is just like the घड़ी का कांच. So मेरे घड़ी में the कांच is transparent and the color comes from the dial that is below it. So for example, in my घड़ी the dial is black. किसी और की आंख में black eyes होती है, किसी को blue eyes होती है, किसी को green, brown, so on. But the ऊपर का कांच is your cornea. Cornea को local language में पुतला भी बोलते हैं. इसके पीछे there is a natural or a प्राकृतिक lens. Okay, so the lens has to be transparent. अगर लाइट यहाँ से अंदर घुसना चाह रही है, तो then the light has to pass through all transparent structures. So the cornea is also transparent. बीच का लेंस जो होता है वो भी ट्रांसपेरेंट रहता है. The jelly is also transparent, and then the light hits the retina. Can you all see me? Because my video has disappeared for me. Hello? We can't see you actually. Yeah. Now we yeah. So the light has to enter from the cornea and hit the back. जो पीछे का हिस्सा है, जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, इसको रेटिना बोलते हैं. रेटिना यानी कि पर्दा. तो पर्दा इज लाइक जैसे कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड रहता है. अगर मदरबोर्ड चल नहीं रहा है तो कंप्यूटर स्क्रीन भले ही आप नया ले लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. एंड पीछे जो है, ये जो है, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व. नर्व यानी कि नस. नस यानी कि आपका केबल कनेक्शन. तो अगर आपके पास केबल कनेक्शन नहीं है लेकिन आपने नया टीवी खरीदा है, तो उस केबल कनेक्शन के बगैर आपका टीवी बेसिकली इन शॉर्ट यूजलेस है. ओके, सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द आई, सभी हिस्सों को बराबर से काम करना है. इफ इवन वन ऑफ देम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो आंख पे गड़बड़ होती है. अब ये
इनसाइड का पार्ट था, देयर इज ऑल्सो अ पार्ट आउटसाइड। अगर ये आप देखते हैं, ये पट्टी पट्टी जैसे चीजें जो है, ये आपकी आई मसल्स है विच टर्न योर आई इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, विच इज बेसिकली गोइंग टू कंट्रोल कि आपकी आंख टेढ़ी है या सीधी है, यानी कि स्क्विंट है या नहीं। आई थिंक नाउ you all can see me, I think. Yes, we can see. On the, no, I mean, I've joined on the laptop also. Can you see me on the laptop? We can Okay, see. anyway. So ये जो है आई मसल्स, दे कंट्रोल कि आप सीधा नॉर्मल देख पा रहे हैं या फिर आपकी आंख या आपके बच्चे की आंख तिरछी यानी टेढ़ी यानी स्क्विंट आइड, जिसको गुजराती में बाणी आंख बोलते हैं। ओके, सो आई मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिरेक्शन ऑफ द आई, बाकी सब इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आपकी नजर। ओके, सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ वो है कि जब आप आई चेकअप के लिए जाते हैं तो आपको कोई रेजर्वेशंस नहीं होने चाहिए। जो डॉक्टर बोलता है कि अगर हमें ड्रॉप्स डाल के चेक करना है, द मोमेंट वी से कि हमें ड्रॉप्स डाल के चेक करना पड़ेगा, या तो पेशेंट को लगता है कि ये बहुत मेजर चीज है क्या, या तो पेरेंट को लगता है अरे ये जरूरी है क्या। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। अगर आप छाती के डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपको बोला जाता है कि अगर डॉक्टर को बोला जाता है कि नहीं, आप सिर्फ मुझे ऐसे देख के बात करिए लेकिन स्टेथोस्कोप मत लगाइए, तो उस चेकअप का कोई मतलब नहीं हुआ। सो द सेम वे इन एन आई चेकअप, अगर हम ड्रॉप्स डाले बगैर चेकअप करेंगे तो ये एक अधूरा या इनकम्प्लीट चेकअप होगा। यानी फॉर एनी आई चेकअप वी नीड टू पुट ड्रॉप्स इन ऑर्डर फॉर इट टू बी डन। Your laptop is connected. Yes, it's connected. So I'm going to share my screen now. No, you were. No. You disabled my screen share. Try now, you should be able to join. Multiple participants. Yes. Can you all see me and hear me? Yes. Yes. Perfect. All right. So, how do we? So in the first screen, I have actually shared a picture of me examining a child, because like they say ki, if you have to do something, you must begin with all the efforts at home itself. So ये मेरे खुद के बच्चे का eye checkup का photograph है. The reason is that I want you to understand that as eye doctors we don't just tell other people to check up. हर एक को लगता है कि नहीं वो खुद के लिए करती है क्या, या ये खुद के लिए करते हैं क्या। तो ऑफ कोर्स हम करते हैं, एंड आई चेकअप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम जरूरी, वी ऑल्सो वांट टू टेल यू के it is mandatory. Okay, so can somebody help me with this slideshow? Here it is on current slide. So this is the parts of the eye. Is it visible to you all? Not visible? Visible, visible. Yes, Go ahead. ma'am. Yeah. Okay. So this is the parts of the eye which I just showed you on the model of the eye. All right. Now how light enters also I explained to you is कि it enters from the front और इसको पीछे तक पहुंचना पड़ता है. Okay. It enters in a straight line. Now this straight line I'm showing on the video that is displayed here. The central aperture जो है, यानी कि this central aperture इसको हम pupil कहते हैं, which is round. It is like the camera का shutter. So if the camera का shutter is minimal or small, जो कि normal हर रोज की लाइफ में रहता है, which is hardly 2 to 3 millimeters inside, then we can see only the central 2 mm of the पीछे का पर्दा, यानी कि बाकी का पर्दा हमको दिखेगा नहीं। जब हम ड्रॉप्स डालते हैं टू कंप्लीट द चेकअप, द आइडिया इज कि वो ड्रॉप्स डालने की वजह से यही आगे का सेंट्रल पुतला जो है वो फैल जाता है। ओके,
which I'm going to describe in my next slide. So what is a comprehensive dilated eye exam? ये सबको, adult, children, जो भी हो, ये सबको करना बहुत जरूरी है. We need to put drops. The drops take some time to act. अब हर इंसान में वो drop अलग तरीके से act करता है, but usually within half an hour उसका असर होता है. कुछ लोगों को जल्दी से यानी 15 मिनट्स में ही वो drop असर कर जाता है, कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है, बट ऑन एन एवरेज हाफ एन आवर लगता है ड्रॉप्स को असर होने के लिए. ये टेस्ट आपको कोई भी आई डॉक्टर के क्लिनिक में ही करना पड़ेगा while sitting in the clinic. And once you put the drops, once the drops have taken effect, के बाद वो आपको बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए ये ड्रॉप्स अलग रहते हैं और यही ड्रॉप्स को असर होने को कम से कम पौने से 1 घंटा लगता है. और ये जरूरी है, जब तक वो ड्रॉप्स ठीक से असर नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी में घाई घाई में टेस्ट करेंगे तो उतना प्रिसाइज रिजल्ट नहीं आएगा फॉर द बच्चे. सो ये फॉर चिल्ड्रन बिलो द 7 years of age especially, it is very important that we put these specific dilating drops which are called cycloplegic drops. Okay, now the reason why I'm emphasizing on this is कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि जल्दी से कर लीजिए, इतना क्यों वेटिंग है, बहुत वेट कराया. Okay, that's not the point. The point is that you have to get it done up to the mark, and for that you have to wait 45 minutes. So जिसके स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, या चिल्ड्रन हु विल नॉट सिट इन द क्लिनिक, नो प्रॉब्लम, वी प्रिस्क्राइब द ड्रॉप्स कि आप घर से डाल के आइए. तो 1 घंटे पहले अगर आपका अपॉइंटमेंट फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock को है, यू आर गिवन दी अपॉइंटमेंट, यू आर टोल्ड हाउ टू पुट द ड्रॉप्स. घर पे ही आप आराम से डालिए ताकि बच्चा अपने नोन सराउंडिंग्स में हो, आपको डालने दे, और फिर आप 1 घंटे के बाद क्लिनिक में आ सकते हैं. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बगैर द चेकअप, लाइक आई सेड, इज इनकम्प्लीट. ओके, नाउ अगेन दिस इज नॉट मूविंग. Is it moving for you all? Has the screen changed? Is anybody here? No, not changing. Okay, so the image on the right, अगर right side पे आप देखते हैं तो ये अलग टाइप का मशीन है. This is particularly done for लोग जिसका रेटिना चेकअप हमें करना है, like high minus numbers, and it is also done by a lot of pediatric ophthalmologists. यानी कि बच्चों के लिए हम ये specific gadget जिसको indirect ophthalmoscope बोला जाता है, we use that in order for us to get an easier access into the child's eye. उसके usually हमें उसके आंख के करीब आना पड़ता है या उसको अपना सिर एक मशीन पे लगाना पड़ता है, जिसके लिए the child may not be very attentive or cooperative. So with this apparatus, wherever the child is looking, we can move the lens and our apparatus on our head so that we can get a better view into the child's eyes. All right. Okay, I'm still not getting any slideshow, so I can't go forward. Let me just Actually, you can crash it back to the PowerPoint mode. At least it'll go forward then. so है ना? stop share. Okay, Just a moment. try sharing again. Yeah, that's better. And where is the slide? Share screen. Share. Okay. So can you see this slide now? In the left side is undilated pupil, यानी कि normal आंख जिसमें हमारा pupil यानी कैमरा का aperture जो है वो सिर्फ 2 या 3 millimeters का रहता है. So if you see this picture over here, it's only 2 to 3 millimeters. It's not more than that. But if you see the picture on the right, ये पुतला फैल गया है, यानी कि ये aperture जो है वो open हो चुका है, खुल चुका है, ताकि हमें ये पूरा रेटिना अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा हमें दिख सकता है. अदरवाइज वील ओनली बी एबल टू सी द सेंट्रल वाला पोर्शन. ऑलराइट, सो व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि प्रॉपर डिटेल्ड आई चेकअप क्या होता है? वन इज आपका स्पेक्टिकल नंबर चेक करते हैं.
पहले ये कंप्यूटराइज टेक्निक से होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट चिल्ड्रन में ये करना जरूरी नहीं है। सो अगर आपका चाइल्ड नॉन कोऑपरेटिव है या बहुत छोटा है, अंडर एज है, बोल नहीं सकता है, पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। वी हैव स्पेशल वेज एंड टेक्निक्स इन विच बगैर चिल्ड्रन के बात करके, बगैर उसका सिर कहीं पे लगा के, वी कैन स्टिल असेस द नंबर। तो आपको ये वहम सिर से निकाल देना है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 इज कि ये चश्मे के नंबर के साथ विजन कितना है, यानी वो इंसान कितना देख पा रहा है। अब जो बच्चा या अडल्ट रिस्पॉन्स दे सकता है, ऑब्वियसली वी कैन क्वांटिफाई दैट, मतलब हमें पता चलेगा कि उसको पूरा दिख रहा है या नहीं। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि नंबर है। भले ही वो बोल ना पाए कि उसको कितना दिख रहा है, भले ही हमको अंदाजा ना हो कि हाउ मच इज दैट पर्सन नॉट एबल टू सी, एटलीस्ट वी नो के नंबर के साथ वो बेटर हो जाएगा। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन इज स्क्विंट असेसमेंट एंड आई मूवमेंट्स, जो बहुत ऑफन मिस हो जाते हैं। तो स्क्विंट यानी कि तिरछापन, which can present as the child will tilt the face. The child will tilt the face in order to see the TV. तो पेरेंट्स बोलेंगे कि ये सिर टेढ़ा करके टीवी देख रहा है, जानबूझ के कर रहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू। दे मे बी टिल्टिंग बिकॉज दे कांट सी। अगर सिर सीधा रख रहे हैं तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए वो तिरछा करके देख रहे हैं। द फोर्थ इज लाइक आई सेड द डायलेटेड चेक, यानी कि रेटिना का टेस्ट करना बहुत जरूरी रहता है। एंड आई प्रेशर इज यूजुअली डन फॉर अडल्ट्स। ओके, इन चिल्ड्रन ये बहुत जरूरी है। ऑल चिल्ड्रन नीड एन आई चेकअप वंस बिफोर एज 5। आइडियली जो एज 1, 3 एंड 5 पे करना चाहिए ऑल चिल्ड्रन। सो 1 एंड 3 पे आप बोलेंगे बच्चा तो पढ़ भी नहीं पाता है, आप क्या करेंगे? बहुत कुछ कर सकते हैं हम। Okay, so we have to do that as eye doctors. Like I said, there are special drops to be put, there are special instruments which any eye specialist will have. And अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, they will have a pediatric ophthalmologist, यानी बच्चों के eye specialist जो आके वो कर लेंगे। Okay, it is very important for parents of children with special needs. आपको आपके बच्चों की आईज 100% चेक करानी है, बिकॉज वेरी कॉमनली स्पेक्टिकल एरर्स आर मिस्ड इन देम, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं पाएगा कि उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। सेकेंड थिंग इज यूजुअली सच बच्चे इंडोर्स रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच उनका नजदीक का काम ज्यादा रहता है। यूजुअली नजदीक के काम के लिए बच्चे को नंबर प्लस या माइनस किसी का भी हो, दे आर एबल टू सी नजदीक या नियर ऑब्जेक्ट्स। It is only when the child holds it very close then the parents start becoming suspicious. Very often parents come and say ये टीवी बहुत नजदीक होके देखता है, टीवी के नजदीक जाके खड़े हो जाता है। That is not because the child is doing it on purpose, but it could be because उसको दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए वो नजदीक जाके देख रहा है। So actually ऐसे बच्चों को और भी जल्दी आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। पुटिंग ड्रॉप्स फॉर बच्चे इज मैंडेटरी। बगैर ड्रॉप्स का नंबर अगर कोई बच्चा चेक हो रहा है, दैट मीन्स वो चेकअप कंप्लीट नहीं है। ओके, स्क्विंट असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, जो हम लोग से कर लेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज विजन थेरेपी फॉर लेजी आई। अक्सर एक ही आंख में नंबर रहता है, दूसरे आंख में कोई नंबर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर हम लोग ने एट द करेक्ट टाइम इंटरवेंशन नहीं किया, उसको ग्लासेस नहीं दिए, तो वो आंख की देखने की कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि वहां से सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जा नहीं रहे। तो ब्रेन को लगता है कि ये यूजलेस चीज है, ये यूजलेस आंख है, इसका कोई काम नहीं है, तो मैं इधर ध्यान नहीं दूंगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेजी आई। इस सिचुएशन में बच्चे को अच्छे आंख को पट्टी लगानी पड़ती है, पैच लगाना पड़ता है, ताकि वो फोर्सिबली कमजोर आंख को यूज कर पाए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तभी रूल आउट होएगा जब आपको पता चलेगा कि बच्चे को नंबर है, और पता तभी चलेगा जब आप उसको लेके जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव eye checkup done in children. Like I said, there are different types of vision charts. Sometimes we use symbols like house, square, apple, rectangle, because these are easier for the children to understand. For certain children, if this is difficult, we have even charts for pre-verbal age group. यानी कि एक 1 year old या 2 year old के बच्चे के साथ भी हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें उसको रिस्पॉन्स देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। We follow other
मेथड्स ऑफ आई चेकअप फॉर देम। ऐसे स्पेशल टारगेट्स रहते हैं पर्टिकुलरली पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, जैसे कि आप नीचे के फोटो में देख रहे हैं, टॉयज रहते हैं ऑन टॉप ऑफ द टेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, जिससे वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी तरफ देखना चाहेगा। ओके, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? लाइक आई सेड 1, 3 और 5 एज ग्रुप में बहुत जरूरी है चेकअप करना, बिकॉज यू कैन पिक अप अ नंबर बिफोर द चाइल्ड आपको आके बोले। थर्ड इज इट विल हेल्प यू प्रिवेंट लेजी आई। तो ये पट्टी जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये जरूरी रहता है फॉर चिल्ड्रन विद अ लेजी आई। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा हुआ क्रिएट करता है इज स्क्रीन टाइम इन चिल्ड्रन। ओके, कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए? अरे मेरा बच्चा तो स्क्रीन के बगैर तो बिल्कुल खाना ही नहीं खाएगा। नाउ आई एम नॉट हियर टू जज कि आप आपके बच्चे को कैसे खाना खिलाते हैं, बट इट इज वेरी एडिक्टिव एंड इट इज नॉट अप्रोप्रिएट to give screen time to children more than a particular amount. So let's see how much under as per AAO guidelines completely avoid any screen time, यानी कि कोई screen time नहीं होना चाहिए for children under 2 years of age in this day and age। यानी in this generation only video calls are permitted, यानी grandparents के साथ या किसी के साथ वीडियो कॉल अगर करना है तो उस बच्चे को फोन दिखाया जाए, वरना उसको फोन या स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए। Between 2 to 5 years of age, not more than 1 to 2 hours of screen time, बिल्कुल भी इससे ज्यादा नहीं देना है। एंड उसके ऊपर अगर आप दिखा रहे हैं अब फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, देन यू मस्ट हैव अ वॉच। आपको बिल्कुल जरूरी है ऑब्जर्व करने के लिए कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द वीडियोज बीइंग वॉच्ड। Very important message that I would like to give the people over here is the bigger screen are always better than mobile phone. So अगर आपका बच्चा मोबाइल फोन मांग रहा है और आपने बोला है कि नहीं मैं सिर्फ आधा घंटा दूंगी या जितना भी दूंगी, द सेम स्क्रीन या द सेम वीडियो अगर आप यही चीज उसको बिगर स्क्रीन यानी कि लैपटॉप स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन या तो फिर डायरेक्टली आपके फोन से कनेक्ट करके टीवी पे स्क्रीन पर कर पाएंगे, दैट इज इवन मोर बेटर। लॉट्स ऑफ पेरेंट्स फील अरे टीवी टीवी से नंबर नहीं बढ़ेगा। नहीं, उल्टा टीवी बड़ा स्क्रीन रहता है और दूर रहता है, यू आर गोइंग टू सिट एट अ डिस्टेंस। सो जो आईज पे स्ट्रेन आती है बिकॉज ऑफ होल्डिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू योर फेस, ये जो डिस्टेंस जो बच्चा एक बार हाथ में पकड़ लेता है, so they tend to hold it like this and they are unable to regulate the distance, जिसकी वजह से उनको आईज में स्ट्रेन होके माइनस नंबर आ सकता है। So we want to keep the object of interest far away. So TV will harm your child much lesser than mobile phone screen. ये अलग नया फैड आया है ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस। आर दे रियली नीडेड? नॉट एट ऑल। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि अरे मैंने ऑनलाइन लेंसकार्ट से ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस मंगवा ली क्योंकि मेरा बच्चा बहुत टाइम लैपटॉप पे स्पेंड करता है, होमवर्क आते हैं, असाइनमेंट्स आते हैं स्कूल से, तो स्क्रीन टाइम के लिए मैंने ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस रेडीमेड मंगवा लिए। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट दीज आर ऑफ एनी यूज फॉर एनीबडी। सेकेंड ऑफ ऑल, इफ आप मंगवा रहे हो तो एटलीस्ट पहले नंबर तो चेक करा लीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका नंबर चेकअप नहीं हुआ है बट वो ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस पहन रहे हैं और घूम रहे हैं नंबर -3 -4 के साथ। तो प्लीज ये सब चीजें खुद से ना करें, जाके एक आई डॉक्टर से चेकअप करा के उनसे पहले कंसल्ट करिए कोई भी तरीके के ग्लासेस खरीदने से पहले। ऑलराइट, तो बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है, स्पेशली अगर बच्चे को नंबर नहीं। विजन थेरेपी, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है। Commonly they will ask you to, like this picture, stare at the candle, stare at the pen and the pencil. Okay, there those are the pencil push up exercises या convergence exercises जिसको बोलते हैं। और वो डॉक्टर बोलेगा इस हफ्ते आप ये करो, फिर नेक्स्ट हफ्ते देखना अभी आपका नंबर -4 हो गया, अभी -3 से -2 हो गया, इसकी वजह से आपका कंट्रोल में आ गया है। दिस इज नॉट ट्रू। देर आर स्पेशल इक्विपमेंट, या जैसे नीचे के फोटो में दिखाया गया है, देर आर स्पेशल इक्विपमेंट दैट आर रिक्वायर्ड। एंड विजन थेरेपी सिर्फ एक सर्टेन टाइप ऑफ लोगों में किया जाता है जिसको लेजी आईज है या तो
आई मसल इम्बैलेंस है, इट नीड्स टू बी डन बाय अ सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल या ऑप्टोमेट्रिस्ट, यानी कि आई डॉक्टर या प्रोफेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट जो रहते हैं उनको स्पेसिफिक इक्विपमेंट की जरूरत रहती है। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम आता है जिसपे बच्चे को बिठा के या अडल्ट को बिठा के ये आई एक्सरसाइजेस की जाती है। सो इट इज नॉट जस्ट कैंडल को घूरो और फिंगर को घूरो और उससे आपका नंबर कम हो जाएगा, ये सब गलत फहमियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो यू नीड टू नो दैट। रिगार्डिंग अडल्ट्स में जो आई प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमनेस्ट इज ड्राई आईज। जो आजकल के जनरेशन है, वी आर ऑल ऑन द स्क्रीन बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स, तो ड्राई आईज रहती है। अब ड्राई आईज जैसे होती है, तुरंत जो अडल्ट्स हैं वो केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट से रेडीमेड कोई भी ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स ले लेते हैं। वेरी ऑफन केमिस्ट आर गिविंग स्टीरॉइड आई ड्रॉप्स या तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, जिसका कोई रोल नहीं है ड्राई आईज, क्योंकि ना तो ड्राई आईज में आपको इन्फेक्शन है, ना तो आपको इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन है। ड्राई आइज के लिए केवल मॉइस्चराइजर्स की जरूरत रहती है। तो उसके लिए अगर आपको कोई सिम्टम्स है, आपको जाके चेकअप कराना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज अ न्यू एज डिजीज, यानी कि इस जनरेशन में हेडेक्स, आई एक, हेवीनेस, ओके, आफ्टर सम टाइम फीलिंग के आईज आर बिकमिंग वेरी हैवी एंड वेरी टायर्ड, ये सब एक्सेसिव कंप्यूटर और स्क्रीन यूज की वजह से हो रहे हैं problems. So for that, first you need to check your eye number. Just yesterday we had a patient who came, she's a doctor, and she came and said कि I got diagnosed with a number last year. We asked her, have you checked your eyes before that? No, I never had any problem. So ये सबसे बड़ी गलतफहमी है. It is like saying कि oh, I never had any problem, I suddenly got a heart attack, I never had a problem before that, and it seems कि मेरा BP बहुत high. जब तक आप जाके चेक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, जब आपको पता चलेगा तो एकदम ऐसे भयानक तरीके से पता चलेगा। सो प्लीज गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। अगर आपकी आईज कभी भी टेस्ट नहीं हुई है क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तब भी जाके टेस्ट कराइए, ताकि हमें पता चले कि अंडरलाइन कोई और बीमारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो एटलीस्ट उसको अर्ली स्टेज में बचा सकते हैं। Third is eye allergy. This is the season of eye allergy. Right now it is going on, especially because dust और pollution बहुत ज़्यादा है, redevelopment के works बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. So a lot of people are having eye rubbing, scratching, red eyes, watery eyes. These are all signs of eye allergy. Again, don't go to the chemist. The chemist does not know. Mostly they give anything, antibiotic, anything they will give. The patient does not know how to use the drops. तो बहुत सारे लोग ये ड्रॉप्स अब्यूज कर करके कॉम्प्लिकेशंस लेके आ जाते हैं। उससे अच्छा आप जाके दिखा दीजिए, क्योंकि अगर आपको आई एलर्जी है या इन्फेक्शन है, ये चीज बिना आपको एग्जामिन किए हुए हैं ऑन आई डॉक्टर का मशीन विच इज अ स्लिट लैम्प, बिना एग्जामिनेशन हमें पता नहीं चलेगा कि क्या आपको एलर्जी है या इन्फेक्शन है। और दोनों के ड्रॉप्स एकदम अलग है, दोनों की दवाइयां एकदम अलग है। सो इंस्टेड ऑफ wasting your time without a diagnosis, without getting checked up, अगर प्रॉब्लम है तो पहले सीधा आई डॉक्टर के पास जाइए और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। सो द आइडिया इज के यू शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम, यू शुड नॉट हैव एनी फियर एंड गो टू द रॉन्ग पर्सन बीइंग ओवर हियर। डोंट गेट अनऑथराइज्ड एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन हु इज सेलिंग मेडिसिन। उससे एडवाइस मत एक्सपेक्ट करिए, आप जाके आई डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। ओके, so these were the common things that I thought I should cover up on. And again, my screen is yes. For dry eye treatment, this is something that is very common. Again, dry eye treatment के लिए हम लोग सब आई ड्रॉप्स डालते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि ड्राई आइज की ट्रीटमेंट यानी कि ड्रॉप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए भी स्पेसिफिक ड्राई आई बेस्ड लेजर्स रहती हैं, ट्रीटमेंट रहती है, जिससे आपको बहुत फर्क पड़ सकता है। So this is just a video of a specialized dry eye treatment. It is called Intense Pulse Light. It has laser shots and a mask जो कि dry eyes के लिए specific treatment रहता है। Again for this आपको eye doctor के पास जाना पड़ेगा. They will test you to see whether आपको इस treatment की जरूरत है या नहीं। Most patients of dry eye सिर्फ drops से या basic treatment से ही respond करते हैं। लेकिन कुछ treatments जो कुछ patients जो treatment को respond नहीं कर रहे हैं, उनको शायद इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। That's about it. Thank you very much.
let me ask you all if you all have any questions. क्या आपको कुछ सवाल हैं जो आप मुझे पूछना चाहिए? हेलो मैम। हेलो। मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने अभी मेरे बच्चे का आई चेकअप कराया जस्ट 6 तारीख को, 4 दिन हो गए। तो उसमें हाँ, तो वो अभी डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है। उसको ड्रॉप्स, एक्चुअली वो बच्चे थोड़े रहते हैं, मतलब तुरंत डालने नहीं देते, तो उन्होंने एक आंख में मैंने ड्रॉप्स डाला था, फिर बाद में एक आंख में भी उन्होंने डाला, बट आफ्टर 10 मिनट्स, आई थिंक 5-10 मिनट्स, ज्यादा मिनट्स आपने जैसे बोला 40-45 मिनट्स होना चाहिए, बट उसने 10 मिनट्स ही मतलब रखा, ज्यादा नहीं, किसने? मतलब चाइल्ड ने। हाँ। श्लोक। हाँ, तो उसने रखा, फिर उसका चेकअप, मतलब नॉर्मली जो मशीन जो रहता है अपने ये चिन और हेड करके, तो तो उसने फर्स्ट टाइम किया तब बराबर कराया, फिर बाद में अभी उसने ड्रॉप्स डाले, उसके बाद उसका अभी वो बोल नहीं सकता है, मतलब स्पीच उसका एकदम क्लियर नहीं है, तो वो जो विजन के जब हम जो आंसर देते हैं वो दे नहीं सकता था, तो उसका वापस वो आई चेकअप करा, चिन और हेड को फॉरहेड रख के, तो तभी उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने रिजल्ट में मेरे को रिपोर्ट में लिखा है राइट एंड लेफ्ट में, तो राइट, दिव्या प्लीज, उसमें राइट में लिखा है SPH+1 और CYL -150 राइट का है, और एक्सिस 175 बताया है, और लेफ्ट में उन्होंने बताया SPH+1, CYL -1.50 और एक्सिस 170, तो उन्होंने बोला उसको नंबर है, तो हमें क्या उसका रेगुलर ये चश्मा बनवाना पड़ेगा क्या, पहनने को बोला है उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने बोला है बना के पहनाना है, तो इसमें सवाल क्या है? पहना के बनाना है तो बिल्कुल, मतलब बना के पहनाना है तो बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। ओके, नहीं एक्चुअली उन्होंने 10 मिनट्स, आई थिंक सो 5-10 मिनट्स ही वो ड्रॉप्स रखे थे, ज्यादा देर तक उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि वो इतनी देर बैठ शायद, हाँ शायद क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि चाइल्ड कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, या तो बेसिक, कभी कभी जैसे कि मैंने कहा, कभी कभी फर्स्ट चेकअप में हमको बेसिक नंबर पता चल जाता है। ये बच्चों में या कोई भी बच्चों में जिसमें अनरिलायबल रहता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उसमें हम अपने अप्रोक्सीमेशन से दे रहे हैं, तो यानी कि वी डोंट नो कि बच्चे को कितना दिखाई दे रहा है, बट एटलीस्ट थोड़ा तो उसको बेटर करने के लिए हम लोग उसको दे रहे हैं। अभी जैसे आप में और मुझ में हम एग्जैक्ट नंबर दे पाएंगे, यानी कि 0.25 का भी फर्क होगा तो मुझे और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे फायदा हो रहा है या नहीं। इस बच्चे को समझ में नहीं आने वाला है, तो हम अप्रोक्सीमेट जो आता है मोटा मोटी वो दे देते हैं कि मेजर चंक ऑफ लोड जो है वो एटलीस्ट पेशेंट को मिल जाना चाहिए, लोड यानी कि ऑफ लोड हो जाए। डेली पहनाना ही पड़ेगा उसको, उन्होंने बोला 6 मंथ अभी डेली पहनाओ, और उसको फिर आफ्टर 6 मंथ मेरे को बताना वापस चेकअप के लिए। तो सभी अडल्ट चिल्ड्रन जो भी हो, आपको पहन के वापस जाना पड़ता है फॉलो अप के लिए, देखने के लिए कि ये नंबर स्टेबल रह रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि अप टिल द एज ऑफ 18 या 20 किसी का भी नंबर चेंज हो सकता है, तो भले वो नॉर्मल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड भी ना हो, यू हैव टू गो फॉर चेकअप देखने के लिए कि वो नंबर चेंज हो रहा है या नहीं। अडल्ट में ये मतलब उसको इससे कुछ वो तो नहीं है ना, मतलब बढ़ भी सकता है, घर मतलब नॉर्मल रेंज में रह सकता है, या कि मतलब ये किस वजह से हो सकता है कि इसका ये नंबर आया है, बेसिक नंबर? तो किसी का भी नंबर क्यों आता है? क्योंकि उसका आईबॉल उस तरीके से ग्रो हो रहा है। जैसे कि किसी का आईबॉल हद से ज्यादा फास्ट जब ग्रो होता है उसको माइनस नंबर आता है, किसी का आईबॉल नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा स्लो ग्रो होता है, यानी कि छोटा आईबॉल रह जाता है, उसको प्लस नंबर आ जाता है, और किसी का एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसको सिलिंड्रिकल यानी कि एक्सिस वाला नंबर आ जाता है। तो ये सब उसके पर्सनल आईज के हिसाब से और उसके बॉडी के ग्रोथ के हिसाब से उसके लिए ये नॉर्मल है, यानी कि उसके आंख के माप के हिसाब से उसको नंबर आ रहा है। अभी क्यों? जैसे कि उसका वेस्ट का गर्थ है, अगर आप उसका वेस्ट का माप लेंगे, उसका वेस्ट का माप इतना इंचेस का क्यों है जितना है? क्योंकि ये उसका बॉडी का साइज है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये उसके साइज के हिसाब से आपको उसके साइज का पैंट खरीदना पड़ेगा, ना छोटा ना बड़ा, उसके माप के हिसाब से। वैसे ही आंखों का नंबर रहता है, उसके आइज के शेप के हिसाब से हर एक इंसान का नंबर आता है, जो भी उसका नंबर है
भले वो माइनस हो, भले वो प्लस हो, भले स्फीयर हो, भले सिलेंडर हो, आपको वो उसको पहनाना है। ओके, तो मतलब हमें ये डेली ही पहनाना ही है, उन्होंने बोला है तो। बट बिल्कुल ही पहनाना ही 8 इयर्स का है तो ही इज कैरिंग और नॉट, वो टेंशन वाली बात हो जाती है क्योंकि 8 साल का है, 8 साल का है वो, 8 हाँ, इयर्स हो। हाँ। तो चश्मा इज लाइक, बोलते हैं ना, एक खिलौना जैसा हो जाता है ना उनके लिए, तो अभी एकदम से वो। बिल्कुल भी नहीं, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन को भी हम चश्मा पहनाते हैं। तो ओके, 8 years तो बहुत ही बड़ा चाइल्ड है, उसको तो आराम से पहना सकते हैं। वो तो है, बट हाँ, मतलब इट्स एटले टेंशन जैसा ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मतलब +1 है और -1.50 है, तो इट्स जैसे कि नॉर्मल। और मैंने जैसे कि मैंने कहा, आपके बच्चे का वेस्ट पे जाके आज जाके उसको मेजरमेंट करो, उसकी वजह से आपको टेंशन होगा क्या? हाँ, नहीं, क्योंकि वो उसका ओके माप है, जो भी है आप वही साइज का पैंट लेके आएंगे, चाहे वो जरूरत से बड़ा हो चाहे वो जरूरत से कम हो, आप वो पैंट का साइज खरीद के लाने वाले हो। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई एम हैप्पी कि आपने पूछा। सब पेरेंट्स को लगता है ये नॉर्मल है क्या? नॉर्मल मतलब क्या? ये उसके आंख के लिए नॉर्मल है, उसको ओके। इसकी है तो कोई। चश्मा पहनाने से उसकी उसका आईज का मतलब जो फोकस रहेगा वो बेटर होगा, वो हमारे लिए अच्छा है। और तो अगर जो हम नहीं वो पहनाते थोड़ा तो। सा ब्लर हो रहा होगा, वो पहन के उसको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ओके, मतलब उसको दिखता तो है, आई थिंक सो, उसमें विजुअलाइजेशन में उसका इशू नहीं होता है, बट वो बोलते हैं आजकल की लाइफ स्टाइल के हिसाब से वो क्या मोबाइल लेके बैठते हैं, तो उस यस, हिसाब से उसका थोड़ा विजुअलाइजेशन आंख में थोड़ा प्रॉब्लम हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल। टीवी तो दूर से ही देखते हैं, बट फिर भी वो बोलते हैं ना, एक टाइम पीरियड होता है जो वीकनेस आंख का रहेगा उसका, तो आई थिंक सो दिस टाइम उसका आई थिंक इशू हुआ रहेगा, इस वजह से उसको ये नंबर्स आए। करेक्ट करेक्ट। ओके 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 तो ओके, जो थैंक भी यू। नंबर है, भले ही वो बड़ा हो भले ही वो छोटा हो, जो भी हो, अगर आपको किसी ने चेक करके बोला है कि उसको पहनना है तो बिल्कुल ही उसको पहनना ही है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। एंड आइडियली मैम, आप ये चेकअप एक पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, जो बच्चे के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, जैसे कि हाँ, अगर मैं एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मेरे क्लिनिक में मैं एक पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को बुला दूंगी अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो जैसे अगर हम लोग बेसिक चेकअप कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चा कोऑपरेट कर रहा है, आंसर कर रहा है और हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्सेज या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो हम हम्म शायद स्पेशलिस्ट को ना बुलाएं। लेकिन अगर हमें लगे कि नहीं, ये जरूरत से ज्यादा छोटा बच्चा है, ये पर्टिकुलर टेस्ट जो हम करना चाहते हैं उसके लिए वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हम बुला के वो टेस्ट करा सकते हैं, या तो आप उनके पास जाके वो टेस्ट करा सकते हैं। इसको पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यानी कि आंखों के, बच्चों के आंखों के डॉक्टर बोले जाते हैं, जिनके पास पर्टिकुलरली स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पर्टिकुलरली उनके पास जाएंगे तो और भी इजी होता है, क्योंकि क्या, वो उनको हर रोज वो बच्चों को देख रहे हैं जो बात नहीं कर पाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 year old, 2 year old, 6 months old, so they will तो be able to much faster and quicker with such children. वो डॉक्टर हमें कहाँ मतलब मिलेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मली जो हमारे आई स्पेशलिस्ट यहाँ जैसे कि हमारे मैंने कहा, दिल्ली में। अगर वो नॉर्मल देख पा रहे हैं और उनसे डायग्नोस हो रहा है तो वो खुद से आपको बोलेंगे कि ये कर दो। बट अगर वो बोल भी दे आपको कभी कि अभी हमें पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को बुलाने की जरूरत है या आपको जाके दिखाने की जरूरत है, तो फिर भी आप घबराइए मत, आप जाके वो कर। ओके ओके, नहीं तो हमें अब जैसे ये करवाया है, उन्होंने बोला है, तो हमें और किसी दूसरे के डॉक्टर मतलब दूसरे आई स्पेशलिस्ट जैसे बच्चों के और स्पेशल के डॉक्टर के पास जाने की जैसे जरूरत है क्या ऐसे? फिलहाल तो नहीं। नहीं ना, ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। There is a question in the chat box. Can you please advise on the correct procedure for eye drops installation? Okay, Jesse so has asked. let me see if I have an eye drop. So if any one of y'all is on Instagram, I have a profile on Instagram called EYEI Dr. Karishma. And on that, I have a full video on how you are supposed to put eye drops. So basically, you are going to pull down your eyelid. ये जो lower पलक है, I'm going to come close to the camera. Okay, ये lower पलक जब आप खींचते हैं तो आपको यहाँ पे खांचा दिख रहा है, वो ड्रॉप को उसके अंदर जाना चाहिए. I'll just bring a drop and show you. Just give me 1 minute. Yeah, so this is an eye drop.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शेक द बॉटल, आपको बॉटल को शेक करना है, हैंड वॉश करके आना है। ओके, आप बॉटल को लेंगे, अभी मैं बिना मिरर के कुछ भी कर रही हूँ, आपको डायरेक्टली कैमरा में देख के बता रही हूँ। ये आपने नीचे का पलक खींचा, ओके, इसके अंदर जो खांचा है उसके अंदर ड्रॉप जाना चाहिए। तो आप ऊपर देखेंगे, एक ड्रॉप यहाँ पे आपने डाल दिया और ये आपने आंख बंद कर दिया। 2 सेकेंड्स के लिए आप इसको बंद करेंगे, एक्सेस को वाइप कर देंगे, दैट्स इट। ओके, यू कैन डू इट लुकिंग इनटू अ मिरर, यू कैन डू इट ऊपर से डाल के, यू कैन डू इट लेट के, हाउएवर यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। जस्ट मेक श्योर के ड्रॉप का जो बॉटल का टिप रहता है वो आपके आईज में लगना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज, अगर आपको लगता है कि ये तो पूरा ड्रॉप निकल गया, आंख में कुछ नहीं गया, तो एक और एक्स्ट्रा ड्रॉप डाल दीजिए, पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन। बच्चों में तो 100% वो स्क्वीज करके आंख बंद करेंगे, आधे से ज्यादा ड्रॉप तो बाहर निकल जाएगा। सो देन यू पुट 1 more ड्रॉप, देयर इज नो हार्म इन दैट, पुट एक्स्ट्रा। 1 ड्रॉप के बदले 2 ड्रॉप जाएंगे, 2 ड्रॉप्स के बदले 3 ड्रॉप जाएंगे, नो हार्म, बट एटलीस्ट वो ड्रॉप जाना चाहिए। ओके, आई होप दैट इज explain as a good enough explanation. Can you repeat the dry eye के लिए आपने कुछ बोला था towards the end? वो एक बार फिर से बोलेंगे कि dry eyes के लिए there is a some Normally for dry eyes we give eye drops. Okay, there are different types of dry eye. There is a type of dry eye in which the tears यानी कि आंसू are not being produced enough. For that we have no option but you have to keep putting eye drops or ointment. But there is a type of dry eye where ASU are coming, that means tears are coming, but sorry, they are not staying enough or they are not staying for long enough in your eye. This is called evaporative dry eye. Yani ki the tears are coming, but they are getting evaporated faster than normal due to the heat, dust, pollution, or whatever other reasons. So such patients have to undergo certain tests which the eye doctor will be able to do for them, and then they can undergo specialized dry eye treatments like I showed in the slide. Or there are heat based mask and heat based laser treatments which you can do to improve your dry eye. So what I was trying to put across was that if you are somebody who is suffering from it and koi relief nahi mil raha hai, then again go to the eye doctor. The problem is that in our country, unfortunately, everyone goes to the chemist. कि कोई ड्रॉप दे दो, मुझे ये हो रहा है, कोई ड्रॉप दे दो, कोई दवाई दे दो. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स ओवर देयर, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल दुकान वाला है. हाफ ऑफ द कंट्रीज chemists are not even pharmacists, right? So they are just going to give you कि अच्छा शायद ये डाल दो, वो डाल दो. So they may give you wrong advice, which is why what I'm trying to say is that go and get yourself checked up. If you are not getting benefit from regular drops, then there are so many things that can be done. So visit your eye doctor and ask him or let him or her assess and then decide. Okay, thank you. And parents, any more questions? Karishma ma'am, I would like to ask, like, if you can suggest some preventive measures or precautions for those who are exposed more to, computers, laptops. So Like there is some something called the 2020 rule, which is the easiest preventive measure. So 20-20-20. Every 20 minutes, take a break of 20 seconds. And what do? Sit in the same place you are sitting. Look at an object that is 20 feet or more away from you. Means what? Means look out of the window. Look at the furthest tree that you can see. Basically, look at a distance object. When you are looking at the screen all the time, your eyes are continuously focused only at one point. So what is happening is the eye muscles are going into spasm. By looking at a distant object, you are giving your eye muscles that relaxation, allowing the spasm in the muscle to break. So you allow that eye muscle to open close. Like, supposing I ask you to lift up a wazan of or theli of 5 kilos, ऐसे ही खड़े रहो. After some time, your hand will start paining. So what are we asking you to do? We are asking you to stretch your muscle out. Same way to stretch your eye muscle out, you are going to change the focus. So instead of only looking at the screen, look at the most distant object just for 20 seconds. Then look at any other object midway. So at the end of the room, somebody else at the corner of the room, and then get back to your work. That hardly takes 20 seconds. You don't have to get up. You don't have to do anything. So that is the easiest preventive
care that any computer IT individual can do. Apart from that, of course, if you have regular dryness issues, then you should be using moisturizing eye drops, because most computer users will end up having some amount of dry eye. So what I usually recommend after I have tested someone is कि keep the bottle of moisturizer at your desk only, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, जो आपको पड़ने वाली है, after a few hours your eyes will get tired, you know, you will get exhausted of looking at the screen. So you can use a moisturizer. Moisturizers have no medicines in them. They just have artificial tears. So you are just hydrating the eye. Like if you have dry skin, you will pick up a bottle of Pond's or Nivea or any moisturizer lying in front of you and apply it without having to stress or think about it too much. Similarly, you can use moisturizing eye drops for the eye, apart from which you can do those certain 20-20 rule exercises. Thank you, ma'am. Most welcome. Is there anything else? There is a question in the chat box. Kids get red eyes after shampoo bath. Do advise? Very good. Even adults can get this redness. Good question. Number one, it's common because it could be because of some chemical in that shampoo or soap which that individual is reacting to. So a little redness is common, especially अगर वो soap eyes में चले जाता है, which is, as you know, very common in children क्योंकि वो rub करते रहते हैं. But if it is too red, or if you feel that it is not, there's redness for at least 15-20 minutes after the head bath or after shampoo, then maybe you need to change the product. Maybe that product is not suiting your child or you. Then change the product and see. Maybe it won't happen with another product, a little more less chemical or children-based product. Is that okay? Anybody else? Any other questions, parents? Hello, ma'am. There is any exercises about eyes? Like I showed in the presentation, there are those exercises where they'll tell you stare at a candle and don't blink, and then there are these exercises called pencil push-up exercises. But for what? The question is, why do you want to do them? If you are not having any problem, जबरदस्ती का कोई exercise करने की कोई जरूरत नहीं है. Okay. For children only, because of okay, okay. Okay. They are not excessively using the screen, or they are having some eye problem for which we have to advise any particular specific vision therapy based eye exercises. Otherwise, no, there is no need. Okay. Okay, okay. Thank you. That's right. Any other questions, parents? Chalo, if not, Mariam teacher, will you please give the vote of thanks? Yes, ma'am. Well, I'd like to say the session was really informative, and thank you so much for your valuable time. I really appreciate you giving this session. I care for all. So thank you very much once again, ma'am. Thank you. Thank you so much for having me. Thank I'm you so very much. apologetic for the delay in this connecting. I don't know what happened to my laptop today. That's okay. Thank you so much. And I'm sure many people will come to you now. So, for your expert advice and help. Yeah. Thank you so much. All right. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye. Bye, parents. Thank you for attending. Bye, parents. Thank you.